सिस्टम है वो पूरा एकदम बेकार का है। टाटा जो चला गया तो चला गया, यहाँ पे कोई दूसरा कंपनी भी नहीं आता है। हर आदमी को काम चाहिए अभी, काम नहीं होगा तो खाएगा क्या। না জল কল দিয়েছে কিন্তু জল আসেনি। আচ্ছা, তো কল আছে, জল নাই। কল আছে তা জল নেই। Acha. Bengal is heading into a crucial assembly election. The ruling party is completing nearly 15 years in power, and if returned, that would extend its rule close to 2 decades. The BJP, now the principal opposition after a significant rise in vote share last time, is pushing hard to convert that momentum into seats. Now, on the ground, the issues range from jobs and governance to voter list revisions and accountability. I'm here speaking directly to the people across age groups and communities to understand what really matters to them this elections and whether the mood signals continuity or change. ভাতাটা দেওয়াটা ঠিক না, তার থেকে সমস্ত ঘরে ছেলেদের একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়াটা খুবই জরুরি, তারা খেটে খাক। আমার সত্যি কথা আমি এটাই বলতে চাই যে পরিবর্তন আসাটা ভালো। সবার ভালো চাই, আমারও একটু উন্নতি চাই আমার সংসারের, যাতে আমিও একটুখানি উঠে দাঁড়াতে পারি। আমার ছেলেরাও তো দেখো আজকে নাতি নাতনিগুলো ছোট ছোট, এদের পড়াশোনা শেখাবো, মানুষকে হাতে পয়সা না থাকলে কি করব? দিদির 1,500 টাকা থেকে আর সংসার চলে? 1,500 টাকা वाला স্কিম ভালো না, এ তো হাতের ময়লা। দিদিকে আর মানুষ চায় না। এত চুরি চাঁচামি করতে লাগলে, এত কিছু করতে লাগলে, খবরে টিভিতে দেখায়, সাধারণ মানুষ দেখে না। এটাই হলো, আমরা দিদিকে চাই না, এখন পরিবর্তন চাই। মোদিকে চাই, জানি কর্মসংস্থান, বেকার ছেলে বেকার মানুষ যত সব কাজ চাই। We are in West Bengal's Madhyamgram assembly seat. So let us speak with some women here and find out what they are thinking. দারিদ্রতা বেশি, কারণ অনেক ঘরেই 2-3টে ছেলে, কারোরই কাজ নেই। হ্যাঁ, বা তাদের অভাব অভিযোগ, ছেলেপেলে কাজ করতে পারছে না, যখন যেরকম পারে করে, না পারে। এই যে চারিদিকে এত কোম্পানি আছে, কিন্তু এইখানকার ছেলেরা কেউ চান্স পায়। राज्य के अभी चुनाव आने वाला है आपका, तो क्या रख के दिमाग আবার পরিবর্তন হলে ভালো ভালো কাজ হবে। কি কাজের আশা? আমি চাই যে ভালো চাকরি বাকরি হোক, ছেলেদের কর্ম আসুক, কোনো শিক্ষা ভালো হোক, তারপরে ধরো কোনো কলকারখানা হলে ছেলে মেয়েদের যে কষ্ট করে পড়াশোনা শিখেছে, যেই মন্ত্রী আসুক, আমি চাই যেন ভালো মানে হয়। আগের থেকে তুলনাতে তখন কোম্পানি টোম্পানি দেখো সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের আগে কাজের সংস্থার দরকার। আর ওই সাধারণ পয়সায় কি হবে? এতে তো বেকার ছেলেপেলে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। अच्छा, एक प्रश्न, अभी चुनाव आने वाला है यहाँ पे, अगर सरकार दीदी बोलती हैं कि भत्ता बढ़ा देंगे, 2,000 টাকা कर देंगे, কিছু হবে না, এবার দিদি পড়ে যাবে। দিদিকে আর মানুষ চায় না। এত চুরি চাঁচামি করতে লাগলে, এত কিছু করতে লাগলে, খবরে টিভিতে দেখায়, সাধারণ মানুষ দেখে না। ও দিদির আর দরকার নেই। এখন দরকার যে বিজেপি সরকার আসুক, পরিবর্তন হোক, দেশে কলকারখানা আসুক, বেকার ছেলেপেলেরা কাজকর্ম করে বাঁচতে চায়। এই এখনকার দরকার এটা। ওই সমস্ত আর ধান্দাবাজি আর চলবে না এখানে। धंधाबाजी चलबे ना. We spoke to one person here having his evening tea. So let us speak to one more lady who has we spotted on the way. अपना नाम? মামুনি বিশ্বাস। मामुनी जी, एक बार इधर आ जाइए और मुझे आप बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? আমি তো অফিসে গেছিলাম, অফিস থেকে আসলাম বাড়িতে। अच्छा, सो अभी जैसे आपका चुनाव आने वाला है और यहाँ पर तो क्या इश्यूज हैं आपके मध्यम ग्राम में? कैसा रहता है? आप आते जाते हैं, क्या रहता है? প্রথমত এখানে যা কলকারখানা, তা লেডিসকে নেয় না, লোকালের লোক। দ্বিতীয়ত কারোরই নেই, এই ভাতাতে তো চলেই না। আর আমরা কর্মসংস্থান চাই, যাতে লোকালের মানুষ বা গ্রামবাসী হোক বা বাইরের মানুষ যেন করে খেতে পারে। এটাই হলো, আমরা দিদিকে চাই না, এখন পরিবর্তন চাই। মোদিকে চাই, জানি কর্মসংস্থান, বেকার ছেলে বেকার মানুষ যত সব কাজ চাই। So there's a lottery store here. Let us see what will happen in West Bengal, whether they'll get their lottery this time. हमें दिख रहा है यहाँ पे CPIM का झंडा है
ये बताइए कि आप यहाँ पे रहते हैं, अभी आपका जो भी एमएलए जो भी है, यहाँ पे क्या व्यवस्था है, अच्छा है नहीं है, क्या कारण है, क्या है, आप बताइए। कि आज लड़का लोग लड़की लोग जो जिसको काम मांगना चाहिए था, जिसको काम देना चाहिए था, वो लोग आज लाइन पे खड़ा है 1,500 रुपये के लिए। क्यों लेगा? उसको कहा जॉब दीजिए आप। अब तो सरकार है, आप बोला था कि हम साल में दो लोग को का काम देंगे, तो कितना काम दिया? आज इतना हमको तो समझ में आ भी आया कि ये जो लाइन पे खड़ा हुआ है 14-15 लाख लड़का लड़की, अगर दीदी ये नहीं निकालता तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता कि इतना लड़का लड़की बेकार है। अभी तक हो गया है और भी होगा। रविंद्र विश्वास जी, चुनाव आने वाला है वेस्ट बंगाल में, क्या इस टाइम पे जनता, आप भी एक वोटर हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा माहौल है? হ্যাঁ, এবার একটা বিজেপির একটা আছে, আচ্ছা, ডাইরেক্ট কেন? মানে এদের কার্যকলাপের জন্য আর কি বলা হয় এটা। আপনি এখানে এত বরস থেকে আছে, কি রকম রাস্তা, জল কি সবাই ঠিক আছে না? এত বরস থেকে কি আপনি क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, सब यहाँ पे ऐसा ही है? না, জলের কল দিয়েছে কিন্তু জল আসেনি। अच्छा, तो कॉल আছে জল নাই? কল আছে তা জল নেই। अच्छा, चुनाव इस बार होगा, जब पब्लिक जाएगी वोट डालने, आप भी वोट डालने जाओगे, क्या आशा रखते हो कि क्या होना चाहिए? এবার বিজেপি আসবে, আসবে এরকম একটা ভাব আর কি সারা রাজ্যব্যাপী, ठीक। শুধু আমার ব্যাপার না। जो व्यवस्था है, नई नई उम्र के लड़के हैं, काफ़ी लोगों से हमने बातें की, जॉब्स कम मिलता नहीं है उससे, ज़्यादा कंपनी नहीं आएगा तो जब कहाँ से होगा? तो नहीं आने का कारण क्या है? क्योंकि हम तो न्यूज़ में देखते हैं कि कारण हम कैसे बताएगा, वो तो ऊपर महल जानता है कैसे आता पर- है नहीं आता है। जनता मांग करती है ना, जैसे आप लोग जनता तो मांग करेगा, उसका तो काम का दर चाहिए ना। हर आदमी को काम चाहिए। अभी काम नहीं होगा तो खाएगा क्या? काम सरकार तो भत्ता दे रही है, भाता से चलेगा क्या? 1,500 में 1,000 में भाता से चलेगा? अगर चुनाव के टाइम पे बोला कि भत्ता बढ़ा के 2,000 2,500 कर देंगे आज जितना दे, एक फैमिली संसार में कितना लगता है? 2,000 1,000 में संसार चल जाएगा? तो भत्ते से काम नहीं होगा। भाता से चलेगा क्या? तो काम से तो पहला दरकार है काम। एज यूथ आपको क्या फील होता है, आप जब जाते हैं इधर उधर काम करते हैं, ये सब तो कैसा लगता है? क्या बताऊँ, और हमारा इधर का प्रशासन का जो सिस्टम है वो पूरा एकदम बेकार का है। एज वोटर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है माइंड में, कि मतलब क्या रीजंस? हमारे अगर इधर जॉब नहीं मिल रहा है, पहला रीज़न। हम जो बेकार है उस तरह का जॉब नहीं मिल रहा है। इधर पार्टी का तो सब अपने अपनी माने मर्जी से सबको काम दे रहा है। इधर को जो कंपनी है सब अपनी अपनी मर्जी से काम दे रहा है, मुंह देख के। तो फ्यूचर कैसा लगता है यहाँ पे? जैसा कट रहा है वैसा ही फ्यूचर, क्या बताऊँ। और 15 साल हो गए टीएमसी को, क्या उम्मीद रखते हैं कि नई सरकार अगर वापस आती है या जो भी है, क्या करना चाहिए उनको आपके लिए? नया सरकार तो आना चाहिए ही, टीएमसी को जो है उसको हटाना चाहिए हमारा मर्जी से, क्योंकि वो जो कर रहा है, नया सरकार आएगा तो उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। इस एरिया में आप रहते हैं, डेली लाइफ का व्यवस्था कैसा है? रोड नहीं अच्छा नहीं, रोड जल अच्छा नहीं। आप तो पूरे शहर में घूमते हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ बंगाल का या कोलकाता का? पूछो तो। बंगाल का काज का माने काज नहीं है यहाँ पे, काज काम का बहुत खराब है यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी मतलब क्या? कुछ भी मैंने काज नहीं है। हाँ, मकान में कोई भी दुकान चलाता है तो मैंने तकलीफ होता है। काम का कोई रोड मैप, कोई वो नहीं है यहाँ पे, मतलब कोई प्लान गवर्नमेंट की तरफ से? यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, अब तक तो नहीं हुआ है। टाटा जो चला गया तो चला गया, यहाँ पे कोई दूसरा कंपनी भी नहीं आता है। और जो ममता बनर्जी सरकार तो अब तक था यह बंगाल में, जो काम करता है अपने सब लोग देखा है। अभी दूसरी सरकार को वही आना जरूरी है यहाँ पे।